Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you guys would be preparing great for your papers. Okay, so here's a question from the sales forecasting, and it's obviously a yearly paper, and we're going to solve it right now. So, if you look at the question or the requirement of the question, definitely we have been provided with a case study behind it, and this is just the part of the case study. So, the first question is refer to Appendix 1. You need to calculate the seasonal variation in 2018 for quarter 1. Seasonal variation, right? So, in order to calculate just the seasonal variation, we should know the basic formula, which is sales minus trend equals to seasonal variation. So, for that matter, we need to know the sales of 2018's quarter 1. So, if you look at 2018, this is 2018 and this is quarter 1. So, the sales for the 2018 quarter 1 is 21.5 sales. Sales minus trend is 23.06. That's going to give you the answer for seasonal variation, which is 4A1. So 21.5 minus 23.06. So allow me to write 21.5 minus 23.6. That's going to give you a seasonal variation of minus 1.56. Now do remember, it's mandatory that you are supposed to write this minus sign. If you're not writing this minus sign, or if you are ignoring this minus sign, definitely there wouldn't be any marks for that. आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे सिचुएशन में. सो कंसिडर इट एज मैंडेटरी कि अगर मेरे पास वेरिएशन नेगेटिव आ रही है तो यू हैव टू शो नेगेटिव साइन, एंड ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव आ रही है सो यू डोंट नीड टू शो एनी साइन फॉर द पॉजिटिविटी. ठीक है. So sales minus trend equals to season variation. That's the first part of it. It was a one marker question. We did it easily. And this is the basic formula, and that should be applied anywhere whenever you're trying to find the seasonal variation. Number one. Okay. So let's move on to number two. Number two. And those who are thinking who are still confused, how do we get this minus sign? देखिए आपके पास यहाँ पे sales कितनी थी? How much was the sales? The sales for the current quarter, that is 2018's quarter 1, the sales were 21.5. Like these were the actual sales, right? Then you have seen the trend. What is trend? Trend is basically the past pattern, right? It's the pattern. तो ये आपको एक पैटर्न बताता है कि प्रीवियसली हर साल 2018 के क्वार्टर वन में ऑन एवरेज कितनी सेल हुआ करती थी? दैट इज 23.6. अभी कितनी हुई है? 21.5. तो डेफिनेटली हमने सेल्स कम की है इस साल इन कंपैरिजन टू द ट्रेंड और द पैटर्न. सो इसलिए इट्स अ नेगेटिव वेरिएशन. आई होप दैट्स क्लियर नाउ. Okay, moving on towards the next one. So, on the basis of this data, now we are supposed to find this 4A2. 4A2, which is an average seasonal variation. So now you have to find the averages, right? Which quarter is it? It's like 2015's quarter 2. So you have to find averages. And beta jo average hota hai, definitely it's a combination of all the given quarters in the respective years. So अगर मैं डेटा देखूं तो डेटा मेरे पास कहाँ से गिवन है? If it's asking for quarter 2, तो अब 2014 का quarter 2 तो नहीं हो सकता, that's nil, क्योंकि डेटा शुरू यहाँ से हो रहा है quarter 2 का, 2015 से शुरू हो रहा है. The 2015's quarter 2 is like 0.56. Then 2016's quarter 2, that's minus 1.41. Then 2017's quarter 2, that's minus 1.35. Then we have the last one, 2018's quarter 2, which is minus 1.75. So as we are trying to find the averages, we need to find the individual figures of all the quarters in the given years from 2015 to 2018. So let's add up all the seasonal variations, ignoring the minus sign for a while we are adding them up. So 0.56 plus 1.41, let me write it here. 0.56 plus 1.41 plus, it's gonna be 1.35 and 1.75. 1.35 and 1.75, right? So these are basically the sales of all the quarters in respective years from 2015 till 2018.
सो नाउ एज वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज, तो बेटा एवरेज फाइंड करने के लिए आपको एक सिंपल यहाँ पे काम करना होगा। ऑब्वियसली जितनी आपके पास ऊपर सम आ रही है उस सम को आप नंबर ऑफ ईयर्स पे डिवाइड कर लेंगे। सो इफ वी ऐड देम अप दैट्स गोना गिव मी 5.07। अगेन डू नॉट फॉरगेट द माइनस साइन, राइट। हम जब एडिशंस कर रहे हैं तो बीच में हमने माइनस साइन नहीं लगाना, हमने सिंपल ऐड करके, क्योंकि ओवरऑल मेरे पास जो सीजनल वेरिएशन थी जो मैंने ऊपर से अभी निकाली फिगर्स वो तमाम की तमाम फिगर्स माइनस में आ रही थी, इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूँ। सो माइनस 5.07 डेफिनेटली फिगर्स कितनी थी 1 2 3 4। तो वी सिंपली ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज दैट इज माइनस 5.07 divided by 4, so that's going to give me -1.2, राउंड करके -1.27 million, right? So -1.27 million dollars, this is basically my average seasonal variation of Q2। सो बेटा जो मेरे पास एवरेज सीजन वेरिएशन होगी तो वो हर साल की सेम ही होगी। फिर मतलब अगर यहाँ पे मेरे पास एवरेज आ रहा है कितना 1.27 माइनस में, तो बेटा डेफिनेटली फिर ये भी आपके पास 1.27 होगा माइनस में, ये भी आपके पास -1.27 होगा, बिकॉज एवरेजेस वुड रिमेन सेम। इफ यू लुक एट अनदर एवरेज जस्ट फॉर सेक ऑफ कंपैरिजन, अगर आप यहाँ पे देखें 2014 का Q3 5.42, देन अगेन 5.42, then again 5.42, then again 5.42. So hence the averages will remain same in all the respective or upcoming years, right? So we are done with this part of it as well. We have found the average seasonal variation, which is -1.27. Now moving on to the last one, it's like refer to Appendix 1 and Appendix 2, calculate the PY's forecasted sales for Q3 in 2019. So but अब यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है मुझे, ठीक है? If you look at the graph, I'm going to zoom it in. 2019 Q3, वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद ट्रेंड लाइन, जिसको हम एक्स्ट्रापोलेट ऑलरेडी कर गए हैं, इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। दिस डॉटेड लाइन इज बेसिकली द एक्स्ट्रापोलेटेड एरिया। सो लेट्स लुक वेयर इट एंड्स। ये यहाँ पे एंड हो रहा है, दैट्स गोना एंड हियर। इफ यू लुक एट इट, तो मेरे पास बेटा ये अगर मैं इसको लेफ्टवर्ड एक्सटेंड करूँ ग्राफ में, तो अगर आप देखें तो ये ग्राफ का जो पैटर्न मेरे पास बन रहा है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम गोना यूज अ हाइलाइटर फॉर दैट मैटर। ओके, सो बेटा आप अगर आप इस लाइन को देखें तो ये लाइन कुछ मेरे पास ये वाली लाइन आ रही है, राइट। अब इस लाइन को मैं मज़ीद डार्क कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये जो आपके पास लाइन आ रही है दैट इज़ दिस वन। आई होप सो कि इस मरतबा यस वी हैव प्लेस्ड इट करेक्टली, ठीक है। तो बेटा ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है, ये ट्रेंड लाइन जहाँ पे एंड हो रही थी डॉटेड लाइन, वहाँ से मैंने एक ब्लैक लाइन एक्सटेंड की है। दिस इज बेसिकली वेयर आई कैन फोरकास्ट द सेल्स फॉर 2019 Q3। तो बेटा अगर आप देखें तो ये 24 है, 24 एंड 25, डेफिनेटली बीच में ब्लॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो मतलब हर एक ब्लॉक आपका 2 डिजिट को जो है रिप्रेजेंट करता है, 2 डिजिट्स। तो यहाँ पे आपके पास सिंपली इट्स 24 प्लस 1 ब्लॉक, तो इट्स 24.2, 24.2 आपके पास आ रहा है यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास जो एक्स्ट्रापोलेटेड सेल्स आ रही हैं Q3 के लिए, दैट इज 24.2। लेट मी राइट इट हियर। सो माय प्रेडिक्टेड trend by inspecting the graph, how much is it? That was 24.2, राइट। अब डेफिनेटली ये नहीं है, यहाँ पे हमने इसको एवरेज सीजनल वेरिएशन के लिए एडजस्ट करना होगा। सो नाउ वी हैव टू एडजस्ट इट फॉर द एवरेज सीजनल वेरिएशन। तो एवरेज सीजनल वेरिएशन मेरे पास कितनी है, डेफिनेटली किस क्वार्टर का मांगा गया है, इट्स आस्किंग मी फॉर Q3। तो नाउ आई हैव टू सी द फिगर फॉर Q3, एवरेज सीजनल वेरिएशन हर साल कितनी आ रही है। जी बेटा हमने ऑलरेडी चेक करने के लिए मार्क की हुई थी, एवरेज सीजनल वेरिएशन एवरी ईयर इज 5.42 5.42 5.42 5.42। इफ इट्स अ पॉजिटिव वेरिएशन यू हैव टू एड इट बैक टू द एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर। तो 24.2 मेरे पास ऊपर आ रहा था, पॉजिटिव वेरिएशन थी, तो मैंने यहाँ पे ऐड बैक करना है 5.42, राइट, मिलियन मिलियन डॉलर साइन। तो अगर मैं इसको ऐड अप करूंगा 24.2 प्लस 5.42, दैट्स गोना गिव मी माय फोरकास्टेड सेल्स दैट इज 29.62 मिलियन डॉलर्स। दैट इज एक्चुअली माय फोरकास्टेड सेल्स, ठीक है। तो बेटा इसमें एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है। अब लेट्स सपोज अगर ये एवरेज सीजनल वेरिएशन नेगेटिव होती तो डेफिनेटली इन दैट सिचुएशन वी वुड हैव सबट्रैक्टेड इट देन, राइट।
सो बाय डूइंग दिस यू आर डन विद दिस पार्ट एज वेल। ये 3 मार्कर था। डू रिमेंबर आपने प्लस माइनस का ख्याल यहाँ पे रखना है। नाउ वन मोर थिंग और वन मोर एक्सपेक्टेड थिंग विच कुड यूजुअली कम इन द पेपर। अच्छा, यहाँ पे बेटा पेपर में एट टाइम्स ऐसा होता है, एट टाइम्स लेट मी यूज अ बिट डिफरेंट कलर, आपसे ट्रेंड भी एट टाइम्स मांगा जाता है, ट्रेंड। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इन्होंने इस पॉइंट को, मैं इसको रब करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आप इसको गौर से देखिएगा। वेट, आई एम गोना यूज डिफरेंट, या फाइन, ओके, आई एम गोना पुट अ स्टिकर ऑन दिस फिगर से, मैं इस फिगर को यहाँ पे ब्लॉक करता हूँ, राइट, इस फिगर को मैं ब्लॉक करता हूँ। एंड यहाँ पे लेट सपोज बी इट से एक्स, ये एक्स है जो मैंने ब्लॉक, आई हैव टू फाइंड एक्स इन दिस सिचुएशन। ये जो मैंने स्टिकर लगाया है ये एक्स है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हमने क्या करना होगा, यानी वी हैव टू फाइंड ट्रेंड, एक्स मींस ट्रेंड, आई हैव टू फाइंड ट्रेंड। एक्स को मैं यहाँ पे ट्रेंड कह रहा हूँ, मुझे ट्रेंड फाइंड करना होगा। एट टाइम्स दिस कुड हैपन इन द पेपर एज वेल। सो ट्रेंड फाइंड करने का मतलब है ट्रेंड हमेशा बीच में होता है, मतलब ये वाली जो फिगर है 19.5, दिस इज माय मिडिल फिगर और मीन फिगर, ये मीन है, ठीक है। तो बेटा ट्रेंड तो हमेशा बीच का यानी एवरेज होती है, एंड डेफिनेटली इट्स 4 क्वार्टर। फिर हम क्लास में हमने पढ़ा था ऑनलाइन में, सीजनल वेरिएशन जब हम करते हैं तो इट्स अ मूविंग एवरेज कैलकुलेशन, पहले 4 पीरियड्स पे फिर हम 8 पीरियड्स पे जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इमेजिन करें कि ये जो भी ट्रेंड लाइन हो 19.5 के सामने जो मैंने फिगर लिखी है, इसको मैंने एक्स कर दिया है। लेट मी ट्राई टू राइट इट, यस नो, अगेन जो है इसको जरा कवर करते हैं, जी कवर हो गया, ठीक है। दिस इज माई एक्स एक्चुअली। सो एक्स के सामने वाली जो फिगर है दैट इज मीन। तो बेटा ये मीन पॉइंट कहाँ का होता है, डेफिनेटली इट्स एन एवरेज ऑफ 8, कौन से 8। तो बेटा यहाँ पे टेक्निक आपने हमेशा एक ही यूज करनी है, दो इससे ऊपर वाले, दिस वन एंड दो इससे नीचे वाले। सो टोटल अगर आप कॉम्बिनेशन देखिए ये 8 बनते हैं। हाउ डज दैट मेक 8? तो पहले मैं ये 4 क्वार्टर्स लूंगा, इनकी फिगर्स ऐड अप करूंगा, फिर मैं चूंकि मूविंग एवरेजेस हैं एक को छोड़ के मैं नेक्स्ट 4 कैलकुलेट करूंगा। सो लेट्स ऐड देम अप एंड सी कि हमारे पास क्या फिगर बनती है। सो लेट्स ऐड अप ऑल द 8 फिगर्स। सो इट्स गोना गिव मी 27 प्लस 19.5 प्लस 19.5 प्लस 20.5। ये बेटा पहले 4 फिगर्स थे, ठीक है। सो आई एम डन विद दीज 4 फिगर्स फर्स्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 4 फिगर्स। अब नेक्स्ट 4 फिगर्स मेरे पास कौन से आ रहे हैं, 19.5 टिल 28। सो आई एम गोना ऐड अप द रेस्ट ऑफ देम, प्लस 19.5 प्लस 19.5 प्लस 20.5 प्लस 28। सो लेट्स ऐड अप ऑल द 8 फिगर्स, देखते हैं कि हम ट्रेंड ठीक फाइंड करते हैं कि नहीं। So if you're going to add up all the 8 figures, 27 plus 19.5, आप लोग भी कीजिएगा मेरे साथ, plus 19.5 plus 20.5 plus 19.5 plus 19.5 plus 20.5 plus 28, दैट्स टोटलिंग 174। तो बेटा ये आपको जो टोटल बना के दे रहा है दैट इज लाइक 174। डेफिनेटली चूंकि हमें ट्रेंड फाइंड करना है, एवरेज निकालना है, तो ये 8 हमने यहाँ पे सेल्स की फिगर ली है, तो डेफिनेटली वी हैव टू डिवाइडेड बाय 8। सो 174 डिवाइडेड बाय 8, दैट्स गोना गिव मी अ ट्रेंड ऑफ 21.75। लेट्स सी कि जो हमने ऊपर स्टिकर लगाया था, इज इट द सेम फिगर? यस, इट्स द सेम फिगर, द सेम 21.75। So that is how we can find the trend of any of the figures if it's like X, Y, or Z. So this is the maximum which you can expect from their examiner in the sales forecasting or regarding the seasonal variation. I hope that's clear. Thank you very much.